And welcome once again in your class 6 online science classes. And in this video we will continue our chapter number 11, that is measurement and motions. In our previous videos we have discussed so far history of transports, measurement in ancient times, measurement and unit, international system of units, advantages of SI system, some useful units of length. इन सबके लिए आप जो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका रिलेशन डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हाउ डिफरेंट यूनिट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर and its subunit we will see that 1 meter is equal to 10 decimeters. 1 meter is equal to 100 centimeters also, and the abbreviation for centimeter is cm. And if 1 meter is also equal to 1000 millimeter, and millimeter can be represented as mm, and 1 decimeter is equal to 10 centimeter, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. तो देखिए एक मीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर्स के बराबर होता है, वो 100 सेंटीमीटर के बराबर भी होगा और 1000 मिलीमीटर्स के बराबर भी होता है। हम मीटर को किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक डेसीमीटर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर का होता है, एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का होता है। And if we see the multiple units here, so 10 meters is equal to 1 decameters, and 10 decameter or DAM is equal to 1 hectometer, and 1000 meter is equal to 100 decameter or 10 hectometers or 1 kilometer. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. तो इस तरह से हमें इन वैल्यूज को ध्यान रखना है। इस तरह से हम करते हैं, इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं इसको। A table is 1.65 meter long. Express the same in centimeter and millimeter. अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको सेंटीमीटर में बदलना है, तो हम 1.65 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। फिर से देखिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। If we will multiply 1.65 with 100 centimeter, then we will get the 1.6 meter in centimeter, and 1.65 meter is equal to 165 centimeter. And also 1 meter is equal to 1000 millimeter. Here in your book something is wrong. So 165 or 16.5 into is equal 1.65. Sorry, it is 1.65 also. So this point is written wrong here. 1.65 into 1000 mm is equal to 1650 millimeter. So here if we have to convert 1 meter into millimeter, then we have to multiply 1.65 with 1000, and if we have to convert 1.65 in centimeter, then we have to multiply it with 100 centimeter. So let's move on to the next topic, that is measurement of length. So the distance between any 2 points or place is called length. किसी भी 2 पॉइंट के बीच की या 2 प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ कहते हैं। And SI unit of length is meter. The various tools that can be used to measure length are a meter scale, a measuring tape and a meter rod. देखिए ये जो SI यूनिट है लेंथ की वो मीटर होती है और हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। अगर हमें लेंथ को मेजर करना है उसे मीटर स्केल की हो सकती है, एक मेजरिंग टेप भी हो सकती है, या कोई मीटर रोड होती है। मीटर रोड ज्यादातर आपको कपड़े वालों के पास मिलेगा कि उसकी लेंथ 1 मीटर की होती है, तो बस उसको रखते हैं और मेजर कर लेते हैं। सो मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ मीटर स्केल। अगर हमें मीटर स्केल की हेल्प से क्या करना है, लेंथ को मेजर करना है, तो कैसे करते हैं। ये रूलर सबके पास होता है, आप सबके पास है।
In the measurement of length using a meter scale or ruler, usually the following procedure is adopted. अगर हमें स्केल से मेजर करना है मीटर स्केल से तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज कीप द रूलर along the length of the object so that the zero mark on the ruler coincide with the one end of the object. कि जैसे आपने रखा है कि जो जीरो मार्क है वो एक एंड से क्या हो जाए कोइंसाइड यानी उसके ऊपर आ जाए. तो रूलर को हमें इस स्केल को इसी तरह से रखना है. So the ruler should be parallel to one of the edges और जो रूलर है जो रूलर होता है उसको एक एज के पैरेलल भी रखना है हमें. So if the scale is not placed exactly along the length being measured, a wrong reading will be taken. और अगर स्केल को आपने सही से नहीं रखा इस एज के पास ऊपर तो कहीं ना कहीं जो रीडिंग आएगी वो गलत आ जाएगी. So while taking the measurement, the eye should be correctly positioned. अब एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमारी आई जो होती है जो आंखें होती है वो सही तरीके से पोजीशन होनी चाहिए. अब the line joining the eye to the point where measurement is to be taken must be exactly vertical और परपेंडिकुलर टू द स्केल. अब आपको इसको देखिए स्केल दिखाई दे रही है आपको तो आपको इसको यहाँ से देखना है ऊपर से. हाँ तो आप इधर किनारे से देखेंगे ना इस किनारे से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ऊपर से वो एक दूसरे से मैच कर पा रही है नहीं कर पा रही है. So if the eyes are wrongly positioned while taking the reading will be incorrect and error occurs. तो जो अगर हम आंखों को अलग तरीके से पोजीशन में रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो रीडिंग है वो इनकरेक्ट होगी और एरर्स आनी शुरू हो जाएंगी. So if the edge of the ruler is worn out or broken, the measurement should be taken from any other mark from where the ruler is clear forward. अब अगर एज रूलर की टूटी हुई है या घिसी हुई होती है बहुत सी बार आपने देखा स्केल का तो हम मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं उस मार्क से जहाँ पे वो क्लियर है और उससे आगे वो बिल्कुल क्लियर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेजर फ्रॉम 2 सेंटीमीटर मार्क टू द 7 सेंटीमीटर मार्क. अब आप सबके पास में एक स्केल है अगर उस स्केल से आप देखेंगे 2 से और 7 सेंटीमीटर मार्क तक आपको देखना है तो लेंथ जो मेजर होगी वो 5 सेंटीमीटर ही होगी. ठीक है तो ये चीजें इस तरह से हम कर लेते हैं. एक तो रूलर को हमें क्या रखना है अलोंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट रखना है. दूसरा जो आई है वो करेक्टली पोजीशन करना है और किसी वजह से अगर रूलर का साइड टूटी हुई होती है तो हम उसे पीछे से भी शुरू कर सकते हैं. नाउ सेकेंड इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन. अब बहुत सी बार एक कर्व लाइन बनी हुई होती है यानी तिरछी जो लाइन होती है जिसमें कर्व आ रहा होता है तो हम कर्व लाइन बोल देते हैं. So a string or thread can be used to measure the length of a curved line. तो एक जो कर्व्ड लाइन होती है उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्ट्रिंग धागा एक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है हमें. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी. उस एक्टिविटी से हम समझेंगे इसके अंदर. तो वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है कि टू मेजर एम क्या है इसका लेंथ ऑफ कर्व लाइन. अब देखिए ये कर्व लाइन है जिस तरह से लाइन बनी हुई है उसी तरह से उसके ऊपर एक स्ट्रिंग है उसको रख देना है यहाँ पे और बस उस स्ट्रिंग को उठाइए यहाँ से यहाँ तक और स्ट्रिंग की ये कितनी लेंथ आई है वहां से वहां तक मेजर कर लेंगे तो हमें कर्व लाइन का भी लेंथ पता चल जाएगी. तो लेट्स मूव इट क्विकली. Things needed: a measuring tape, a ruler, a string, a plain sheet of paper, and a sketch pen. Now steps. Follow these steps. आपको क्या क्या चाहिए था एक मेजरिंग टेप एक रूलर एक स्ट्रिंग एक प्लेन शीट ऑफ पेपर एंड ए स्केच पेन. ठीक है और एक स्केच पेन की जरूरत थी और अब आपको स्टेप्स फॉलो करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए कर्व लाइन ऑन ए पीस ऑफ पेपर. ऐसे एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर एक कर्व लाइन बना लेंगे. Now place the string on the curved line. Don't forget to ensure that the string covers every bit of the curved line. अब एक
स्ट्रिंग छोटा सा धागा लीजिए और उस कर्ड लाइन के ऊपर इस तरह से रखते चले जाइए और ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी हिस्सा ना छूटे इस कर्ड लाइन का। Now make two marks on the string at the points where the curved line begins and ends with the help of sketch pen. अब sketch pen की हेल्प से आप पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट लगाने से पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये कर्ड लाइन बनी हुई थी। Then stretch out the string along the ruler and measure the distance between the two marks of the string. This reading gives the length of the string, and if the curved line is longer, use a stretched out measuring tape. स्ट्रेच्ड आउट मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हैं अगर स्ट्रिंग ज्यादा हो हम इससे इस स्केल के अलावा। तो कंक्लूजन वी कैन ऑल्सो फोल्ड द स्ट्रिंग to 1/2, 1/4 and 1/8 to measure its length. हम आधा भी मोड़ सकते हैं। And if we have to measure the long distance or measuring long distance, the distance between any two places is the length of the road traveled to reach from one place to another. अब जो long distance को करना है तो जो रोड की लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस वेरी लॉन्ग इट इज मेजर्ड इन किलोमीटर। डिस्टेंस इज ए लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। दिस इज योर टेस्टिंग टाइम। How is the string useful measuring the curl line? You can see it with the help of activity. And number two, what will happen if the ruler is not placed exactly along the path of the object being measured? Then we will get the wrong measurement. And state the SI unit to measure the following quantities. The SI unit of mass is kilogram and that of time is second. So in our next class we will study motion and the rest.